Hello my dear students, today I will discuss about significant figures and round of figures of class 11, some basic concept of chemistry. So let's start. What is meant by significant figures? All certain digits in a measurement with one uncertain or doubtful digits are known as significant figures. For example, in 25.4 ml, here you can see 25 is certain and 4 is uncertain digits. Another example you can see here that यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी मेजर किया एक्वायर ऑफ द लेंथ और रिपोर्ट किया रिजल्ट 2.92 मीटर। स्टूडेंट बी के द्वारा 2.93 मीटर्स एंड स्टूडेंट सी के द्वारा 2.94 मीटर। यहाँ पे देख सकते हो 2.9, 2.9, 2.9 तीनों केस में क्या है, सेम है। तो ये क्या है, सर्टेन डिजिट्स। और सर्टेन डिजिट्स के साथ यहाँ देख सकते हो 2, 3, 4 क्या है, एक डाउटफुल और अनसर्टेन डिजिट्स। दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। हियर यू कैन सी दैट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज व्हाट, सर्टेन डिजिट्स विथ ए डाउटफुल और uncertain digits is called significant figures. What are here you can remember that all or greater the number of significant figures in your measurements value, greater is the accuracy of measurement or smaller the uncertainty. Now we will learn some rules to determine the number of significant figures. What are the rules to determine the number of significant figures? There are certain rules for determining the number of significant figures. Are all non-zero digits are significant numbers. Here you can see जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि 394 ग्राम में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। 126.3 हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। 39.254 in this number significant figures are 5. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see here, rule number 2, zeros placed left to non-zero digits are not significant figures. Means जो नॉन जीरो डिजिट्स है उससे पहले जो जीरोज है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। जैसे 0.045, हियर यू कैन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2, 4 and 5. In this number 0.00325 have significant figures 3. This 0 will not be counted before non-zero digits. Okay. 0.001 has significant figures 1. Third number rule, zeros between two non-zero digits are significant figures. Means दो non-zero digits के बीच में जितने भी प्लेस किए गए हैं जीरो, ठीक है, all will be counted as significant figures. जैसे कि देख सकते हो 3.0009 हैज़ 5 significant figures. 80008 टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो है सभी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में, ठीक है। 3.206 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 3.085 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट रूल, दैट इज zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal points. Means जीरो जितने भी आएंगे नॉन जीरो डिजिट्स के बाद और भी डेसिमल पॉइंट्स के बाद वो सभी काउंट होगा क्या, एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि देख सकते हो 0.200 ग्राम हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं, ठीक है, सभी काउंट होंगे as a significant figures. Here you can see 0.20850 has 5 significant figures. Next rule, the terminal zeros are not significant if there is no decimal point. अगर decimal point नहीं है तो terminal zeros count नहीं होंगे as a significant figures. Means here you can see 100 has only one significant figures. 100.0 has 4 significant figures. Why? Here decimal is placed, therefore it has 4 significant figures. यहाँ decimal नहीं है, सिर्फ टर्मिनल जीरोज हैं, तो significant figures सिर्फ एक काउंटिंग नंबर ही काउंट होगा। जैसे कि 200 में पूछे तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। 400 या 4000 हैव हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू
1, तो ये टर्मिनल जीरोज काउंट नहीं होंगे, ठीक है। 1400 है तो 1400 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिस टर्मिनल जीरो विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ नेक्स्ट रूल, काउंटिंग नंबर और एग्जैक्ट नंबर हैव इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी काउंटिंग नंबर है और एग्जैक्ट नंबर है उसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी नंबर है उसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि 2 को 2.0, 2.00, 2.000, 2.0000 ऐसे करके लिखते जा सकते हैं। मीन्स इसके पास 2 हैज़ infinite number of significant figures. As you can see here, 2.0 has 2 significant figures, 2.00 has 3 significant figures, 2.000 have 4 significant figures. इस तरह से number of significant figures uncountable होगा, ठीक है। 7 number rule, if number is represented in scientific notation, हम लोग large number को scientific notation में indicate करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखते हैं। देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी n। यहाँ पे ये जो साइंटिफिक नोटेशन में बड़े बड़े नंबर को लिखते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करेंगे, तो ये जो n के जगह जो नंबर होगा वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है 10⁹, दिस विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 1 इंटू 10⁻3, हियर यू कैन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ओनली 1, दिस 10⁻3 विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। वाई, दिस इज ए एक्सपोनेंशियल टर्म। 1.0 into 10⁻3 has 2 significant figures, 1 and 0. Here you can see 1.00 into 10⁻3 has significant figures only 3. Here you can see 2.04 into 10⁸ has significant figures only 3. This exponential term will not be counted as significant figures, ठीक है। Next rule is that while changing unit, number of significant figures will remain same. मीन्स जब हम यूनिट्स को चेंज करते हैं उस समय भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर चेंजिंग हो रहा है मीन्स वो गलत है वैल्यू, ठीक है। 1.5 मीटर को हम लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हो 1 and 5 हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे 150 हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 and 5, 0 विल नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। वाई, 0 इज ए टर्मिनल, ठीक है, डिजिट्स, और टर्मिनल जीरोज विल नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड इन दिस एग्जांपल यू कैन सी हियर 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻3। साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स देख सकते हो 2 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 2 है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म विल नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट इन दिस केस सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए गलत हो जा रहा है, ठीक है। 1 आ रहा है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इस तरह से डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। हमेशा याद रखना ये रूल है, ठीक है, कि यूनिट्स को जब चेंज कर रहे होते उस समय सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी बदलाव नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इक्वल ड्यूरिंग चेंजिंग द यूनिट्स। नेक्स्ट रूल, how is the answer reported while the addition, subtraction, multiplication and division of a significant figure? The result is always reported in the minimum number of digits after decimal point that are in any of the original numbers. इसका मतलब क्या है, जब भी हम एडिशन करते हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 21.14, 11.0, 2.003 तीनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद एक रिजल्ट आ रहा है। ये रिजल्ट को हम लोग रिपोर्ट करेंगे इस अनुसार कि जिस जो ऐड कर रहे हैं उस नंबर में देखेंगे कि किसके पास डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स है। तो यहाँ पे देख सकते हो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है और यहाँ डेसिमल के बाद क्या है 1 डिजिट्स है। तो इसी के अनुसार यहाँ पे जो ये रिजल्ट रिपोर्ट होगा इसी के अनुसार होगा, ठीक है। जैसे कि ये रिजल्ट कैसे रिपोर्ट होगा 34 पॉइंट यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 7 इज ग्रेटर देन
5, then preceding number will be increased by 1. हाउ इज़ दी आंसर। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन के भी केस में कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ठीक है, कुछ भी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट उसी अनुसार रिपोर्ट होगा जो यहाँ पे जिसके पास डेसिमल के बाद कम डिजिट्स होंगे। हाउ इज़ द आंसर रिपोर्टेड व्हाइल द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। The result must be reported in minimum number of significant figures that any of the measurements has. इसका मतलब क्या है, जो रिजल्ट रिपोर्ट होगा वो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, जैसा कि आपका एक्चुअल प्रोडक्ट्स में होगा गुना में। जैसे कि गुना करें 2.5 इंटू 1.25, तो दोनों को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है 3.125, ये रिजल्ट जो रिपोर्ट करेंगे ये किसके अनुसार होगा, यहाँ पे देखेंगे जो गुना कर रहे हैं उसमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसका है। यहाँ पे देख सकते हो 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1.25 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसका होगा उसी के अनुसार जो रिजल्ट है रिपोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही रिपोर्ट होगा, ठीक है, रिजल्ट्स। क्लियर है। अनदर एग्जाम्पल्स यू कैन सी 4.327 इंटू 2.8 इज इक्वल टू ए रिजल्ट आ रहा है। अब ये रिजल्ट्स को रिपोर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस 2.8। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 4। तो जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उसी के अनुसार रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट्स देख सकते हो ये है, और इसका रिपोर्टेड प्रोडक्ट्स कितना है 12। क्यों? क्योंकि 12.11 आया विच इज़ लेस देन 5। तो लेस देन 5 है तो क्या होगा इस केस में, ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ 12 होगा। नेक्स्ट, नाउ द टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। एक्सप्रेस द रिजल्ट्स ऑफ द गिवन कैलकुलेशन टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको कैलकुलेट करना है, इस प्रोडक्ट्स को, ठीक है, इस कैलकुलेशन को। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये वैल्यू का रिपोर्ट जो प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है, रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, ये किसके अनुसार होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स में सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो यहाँ देख सकते हो 3.24 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हियर यू कैन सी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 4। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ है 3.24, और इसी के अनुसार 3.24 के अनुसार ये जो रिजल्ट आया है इसको रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ द गिवन कैलकुलेशन टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 0.0561, ठीक है, 0.0561। देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ भी कितना है 3 है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 3, और यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 3। तो इसी के अनुसार आपका रिपोर्ट तैयार होगा। नाउ द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। व्हाट आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। देखिए हम सभी को पता है कि लेस देन 5 होता है तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता। अगर मोर देन 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर में एक इंक्रीज करके लिख देते हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी द रूल्स। If the rightmost digits to be removed is more than 5, then the preceding number is increased by 1। तो preceding number increase हो जाएगा 1 से। जैसे कि यहाँ देख सकते हो 2.87, तो यहाँ पे 7 है, 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे preceding number कौन है 8, तो 8 में 1 बढ़ा के लिखेंगे 2.9। तो रिजल्ट शुड बी प्रिपेयर्ड हियर लाइक दिस। नेक्स्ट रूल, that is if the rightmost digits to be removed is less than 5, then the preceding number is not changed। अगर लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि 2.92 है, यहाँ पे 2 क्या है लेस देन 5, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2.9 विल बी रिपोर्टेड। नेक्स्ट 3 नंबर रूल्स। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5,
अगर राइट मोस्ट डिजिट अगर 5 है और इक्वल टू 5 है, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज़ एन इवन नंबर। अगर वो एक इवन नंबर है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज़ एन ऑड नंबर। अगर वो ऑड नंबर है तो क्या होगा, एक प्रीसीडिंग नंबर में इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो 3.65, यहाँ पे लास्ट में क्या है 5, ठीक है, राइट मोस्ट डिजिट 5 है। और इससे पहले चेक करना है कि जो प्रीसीडिंग नंबर है, प्रीसीडिंग डिजिट्स है, वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए 3.6 लिखाया, 3.75 इस केस में देखिए राइट मोस्ट डिजिट 5 है और इसका प्रीसीडिंग नंबर क्या है 7, तो 7 को चेक करना है 7 इज इवन और ऑड, तो 7 क्या है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे एक इंक्रीज करके लिखेंगे तो 3.8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 4.350, तो यहाँ पे क्या है 5 से पहले क्या है 3 विच इज ए ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑड के केस में क्या होता है एक बढ़ा के लिखते हैं, तो यहाँ 4.4 हो गया। 4.450 in this case will be 4.4, why because before 5 और राइट मोस्ट डिजिट से पहले जो है प्रीसीडिंग नंबर वो क्या है इवन नंबर, और इवन नंबर के केस में क्या होता है एज इट इज़ लिखा जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होता। अगर यहाँ पे अगर जीरोज के जगह प्रीसीडिंग नंबर राइट मोस्ट डिजिट जो 5 है उसके बाद जो है अगर नॉन जीरो डिजिट से 2 वगैरह, तो क्या होगा, ये फॉलोड होगा और आगे एक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। इट विल बी व्हेन फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, एज यू कैन सी हियर 3.652 इज इक्वल टू 3.7, वाई हियर यू कैन सी 5 इज इक्वल टू 5 एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स 2, हियर यू कैन सी नॉन जीरो डिजिट 7, 5 इज फॉलोड बाय दिस नॉन जीरो डिजिट 7, देयरफॉर यहाँ पे एक इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे रहता 3.650, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते ये 5 से पहले जो प्रीसीडिंग नंबर 6 है ये क्या है इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो यहाँ पे ये इक्वल टू 3.6 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 3.650 के केस में वही होता, समझ में आ रही बात, ओके। देन लेट्स मूव नाउ द टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो गिवन फिगर्स हैं, जो गिवन नंबर्स हैं, उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, एक्सप्रेस करना है। जैसे 6.45372 यू हैव टू एक्सप्रेस इन 4 डिजिट या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इन दिस नंबर हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 4, इन दिस नंबर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 4, एंड इन दिस नंबर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 4, इन दिस नंबर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से 4 डिजिट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये सब गिवन नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ इट इज़ क्लियर देन like, share and subscribe. Thanks for watching our videos. If you like this video, please do subscribe our channels for more updates. Thanks again for watching the videos with patiently. You can also download the PDF notes of this lecture. I have given the link of this PDF notes in description box.